So, in this lecture, we will study John Milton's famous sonnet on his blindness. It is a famous sonnet of John Milton. And before starting the poem, I'll tell you something about John Milton. John Milton is a 17th century English poet, and he was a great scholar, and he was very studious, and he is known for his great epic Paradise Lost. And the epic deals with the entire humanity and its relationship with God. So जॉन मिल्टन जो हैं वो 17th सेंचुरी फेमस पोइट हैं, और ऑन इज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है, और जॉन मिल्टन फेमस हैं एक फेमस एपिक के लिए, एक फेमस महाकाव्य के लिए जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट. अब दिस सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो ये सोनेट है इसके दो, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इट हैज टू पार्ट्स, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट. फर्स्ट 8 लाइन ऑफ द सोनेट्स आर द ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव. जो पहली 8 लाइनें हैं तो उनका जो स्टेंजा है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, और जो लास्ट की 6 लाइन्स हैं उनको बोलते हैं सेस्टेट. और टोटल लाइन्स किसी भी सोनेट में हमेशा 14 होती हैं. ए सोनेट हैज ऑलवेज 14 लाइन्स. दिस यू नो वेरी वेल. सो द पोएम, दिस सोनेट हैज बीन रिटन व्हेन जॉन मिल्टन was in a deep crisis. He has become blind during the middle of his life. वो अंधे हो चुके हैं, एंड नाउ ही कैन नॉट राइट इफ ही इज़ फीलिंग हेल्पलेस ड्यू टू ब्लाइंडनेस. वो अपने आप में काफ़ी असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं. ही इज़ वेरी सैड दैट गॉड हैज़ टेकन हिज लाइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. When I consider how my light is spent. So the writer is saying, the poet is saying that whenever I feel that I have become blind, that I have lost my eyesight and my light is gone, ere half my days in this dark world and wide. Half my days means the poet says that I am feeling sad because I have lost my eyesight and my life is only half spent. मेरी अभी ज़िंदगी आधी बीती है और मैं अंधा हो चुका हूँ. And in this dark world and wide, और इस wide world में, इट्स large world में, I hope this world has become dark for me. Okay, so in the first 2 lines he says, whenever I think about the fact that I have become blind during the middle of my years and this wide world has become dark for him, उसके लिए वो अंधकार छा गए दुनिया में. And that one talent, this is very important, one talent which is death to hide. और वो कह रहा है कि वो टैलेंट जो गॉड ने मुझे दे रखा है, और अगर मैं उसको टैलेंट को हाइड करूं या उस टैलेंट का यूज ना करूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू डेथ. तो ये मेरे लिए डेथ के बराबर है. तो वो कौन से टैलेंट की बात कर रहा है? राइट टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, पोइटिक टैलेंट. द पोइट बिलीव्स दैट गॉड हैज गिवन हिम टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, but and it is his prime duty to use that talent. If he doesn't use it, if he
if he hides it, then it is equivalent to death. ये मौत के बराबर है. Lost with me useless. वो कह रहा है कि अब जो ये टैलेंट था जो गॉड ने मुझे दे रखा है पोइट्री लिखने का, अब वो टैलेंट मेरे लिए यूजलेस हो गया है. इट हैज बिकम यूजलेस. दो माई सोल मोर बेंट. हालांकि मेरी जो आत्मा है, हालांकि जो मेरा हार्ट है, वो चाहता है कि आई शुड राइट ग्रेट पोएम्स. तो इन फर्स्ट 4 लाइन्स the poet says that he is upset because he has lost his eyesight, and he is mainly upset because he cannot use the talent given by God. The talent of writing poetry is useless for him now. I want to write a great poetry, but now I cannot write. In the next 4 lines, to serve, this is I think repetition, to serve there with my maker and present my true account. Maker means God, the God, Nirmata. To serve there with, I want to serve my maker. I want to serve with I want to serve my God with my poetry and present my true account, and I am accountable to him. मैं जिम्मेदार हूं. I am responsible to him. Lest he returning chide का मतलब है रिब्यूक करना, डांटना. Otherwise God will rebuke me. तो poet reflects that because God has given him talent of writing poetry, and it is the utmost duty of him to write great poem, and writing poetry would be a service to his God, but now he feels that because now I cannot write poetry, so God may rebuke him, God may be angry with him. तो उसका डाउट है कि गॉड ने जो मुझे टैलेंट दिया था मैं उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है और ये मेरे लिए एक डिसर्विस है गॉड के लिए, और गॉड शायद मुझसे एंग्री होगा. देन ही आस्क्स ए क्वेश्चन टू हिमसेल्फ. क्वेश्चन पूछता है, इनवर्टेड कोमा में है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड. वो कह रहा है कि देन ही आस्क्स हिमसेल्फ कि क्या गॉड मुझसे अब भी लेबर मीन्स मुझसे अब भी टास्क चाहता है जब मेरी लाइट डिनाइड हो गई है. मीन्स इवन इफ आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, डज द गॉड स्टिल एक्सपेक्ट मी टू राइट पोइट्री. क्वेश्चन पूछता है कि जब मुझसे मेरी आई साइट छीन ली गई है, द गॉड हैज टेकन इट्स, तो अब क्या वो मुझसे उम्मीद करता है कि क्या अब भी मैं अपना टास्क पूरा करूँ, अपनी ड्यूटी पूरी करूँ, अपने पोइट्री लिखूँ. आई फॉन्डली आस्क, ये उसने अपने आप से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट. तो इन दिस 4 lines he is very confused. He has a doubt that whether God will rebuke him for non using his talent. क्या गॉड उसको डांटेगा? और वो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि क्या गॉड मुझे अब इस कंडीशन में भी क्या मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं एक पोएम लिखूं. नाउ इट इज द लास्ट 6 लाइन्स. सो दिस इज सेस्टेट. अब ये जो सारा जो है दिस इज सेस्टेट. ओके, नाउ सी पेशेंस दैट मर्मर सून रिप्लाइज. तभी उसकी जो अंतरात्मा है उसका एक आंसर आया, इस क्वेश्चन का एक रिप्लाई आया. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. वो कह रहा है कि God has great kingdom. God does not need anybody's task. God does not need anybody's work. कोई काम नहीं चाहता.
और ना वो अपने गिफ्ट्स के बदले में कुछ चाहता है। अगर वो टैलेंट देता है किसी को तो उसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं चाहता है। गॉड डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। बेयर हिज माइल्ड योक, योक का मतलब होता है किस्म से जो जुआ होता है, हमने अगर हम खेत जो हम बैलों के ऊपर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड योक। यानी योक का मतलब बर्डन। कहते हैं कि जो इंसान पेशेंस रखते हैं, उसमें गॉड में विश्वास रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी वाकई में सर्विस करते हैं। मतलब वट एवर कंडीशन, कुछ भी कंडीशन लाइफ में हो जाए, अच्छी बुरी, जो गॉड में पेशेंस रखते हैं और गॉड में बिलीफ रखते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो वाकई में उसको सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, वो कहते हैं वो किंग है, इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वो कह रहे कि उसके पास वो एक किंग है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, और होल यूनिवर्स बिलोंग्स टू हिम, उसका पूरा ब्रह्मांड है। और थाउजेंड्स, हजारों लोग काम कर रहे हैं विदाउट रेस्ट, दे आर डूइंग वर्क फॉर हिम। और दिस इज द क्लासिक लाइन जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ओनली स्टैंड एंड वेट। कहते हैं वो भी सर्व करते हैं गॉड को। एक तो वो लोग जो काम कर रहे हैं गॉड के लिए, वो भी गॉड की सर्विस कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी गॉड की सर्विस कर रहे हैं हु ओनली स्टैंड एंड वेट, हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। यानी गॉड ने उनको टास्क नहीं दिया है, बट वो विद पेशेंस दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपना टेम्पर लूज नहीं कर रहे हैं, अपना पेशेंस लूज नहीं कर रहे हैं, अपना गॉड में बिलीफ लूज नहीं कर रहे हैं। दे आल्सो सर्व द गॉड। ठीक है, यानी तो दिस पोएम इज ए रिलीजियस पोएम, ये काफ़ी रिलीजियस पोएम है। और दिस पोएम टीचेज अस दैट वी शुड यूज आवर टैलेंट। जो गॉड ने हमें अपना टैलेंट दिया है, हर एक इंसान में एक टैलेंट होता है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिकग्नाइज आवर टैलेंट, कि हम अपना टैलेंट पहचानें और उसका यूज़ करें। दिस विल बी द ग्रेट सर्विस टू गॉड। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सर्विस गॉड के लिए होगी। एंड वी शुड हैव बिलीफ इन गॉड इन एवरी सिचुएशन। और हर सिचुएशन में हमें भगवान पर अपना विश्वास रखना है। एंड वी शुड बी पेशेंट इनफ टू सर्व द गॉड। हमारे पेशेंस की जो एक पेशेंस वर्च्यू नाम की जो पेशेंस है, बहुत बड़ी एक वर्च्यू है जो कि लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। सो दिस वाज द सोनेट। द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट अगेन। आप अपने कमेंट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप ज़रूर लिखें या मुझे आप बताएं या मैसेज करें। टेक केयर।